Hello bachcho, let's read the given question. The question says a particle of mass 2 kg is subjected to a two-dimensional conservative force given by Fx equals to minus 2x plus 2y, Fy equals to 2x minus y square, xy in meter and F in Newton. If the particle has kinetic energy of 8 by 3 joule at point 2, 3, we need to find the speed in meter per second of the particle when it reaches 1, 2. So to understand this question, we need to understand about the key concept of work energy theorem. So according to work energy theorem, we can write W net, that is net work done on the system by all the forces, will be equals to change in kinetic energy of the body. ठीक है, अब यहाँ पे जब हम W net लिख रहे हैं, it is work done due to all the forces whether conservative or non conservative. ठीक, अब conservative forces are those जिनका work done path से independent होता है, like for example gravitational force, spring force, electrostatic force, ये सारे forces conservative हैं. Take non-conservative force, we deal with friction is a non-conservative force, उसका work done path पे depend करता है, right? And from here we can see, apart from the this formula, we can also have to understand about the meaning of work done. So work done by a constant force, it is given by the expression Fs cos theta. If force and displacement both are in the direction of same direction, so we can say theta will be 0 and cos theta will become 1. So in that situation we can write this value as to be Fs, right? And from here we can see this is valid for constant force. जब force constant nature की होगी तभी we can apply this formula. That is the important thing we need to understand. अगर force variable nature की है तो हम क्या करेंगे, for very small displacement we will consider the force to be constant, and in that situation we can apply this formula fdx, and we will integrate it from the limits, राइट, अपर लोअर लिमिट से हम लगा के उसको पूरा टोटल वर्क डन वी कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस रिजल्ट. एंड टू बी प्रिसाइज यहाँ पे हम लिख देंगे एफ बार डॉट डी एक्स बार. ठीक है ना, एफ एस कॉस थीटा बेसिकली इसी फॉर्मूले से आता है, डॉट प्रोडक्ट ही है ये. ठीक, सो फ्रॉम दिस वी कैन हैव, अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन सी, अगर हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर दे तो हम मान लेते हैं जनरल पोजिशन, इसको हम डाल देते हैं डी आर वैक्टर. सो डी आर वैक्टर को इन टू डायमेंशन व्हाट वी कैन राइट इज डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, right? So this will be the thing that we need to keep in mind for such type of question. Now we can see हमें दो डायमेंशनल की फोर्सेस गिवन है, मास भी गिवन है, और हमें फाइनल 1,2 पे जब बॉडी पहुंचे तो हमें उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है. सो वी कैन से फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट बाय वर्क एनर्जी थ्योरम W net will be equals to change in kinetic energy, राइट? सो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल को हम मान लेते हैं लेट्स से हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. अगर हम ध्यान से देखें तो हमें गिवन है 8/3. ठीक, हमें जस्ट क्या कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू नेट. अगर हम डब्ल्यू नेट कैलकुलेट कर लेते हैं तो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ दिस वी हम कैलकुलेट कर पाएंगे. सो लेट्स से जिसके विद अवर एक्सप्रेशन नंबर 1. सो टू कैलकुलेट डब्ल्यू वी कैन सी, अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डब्ल्यू, that is first we will see के forces are variable, x fx x और y के साथ चेंज हो रहा है, fy भी xy के साथ चेंज हो रहा है. so variable forces, so we need to go for the term integration. so dw को पहले हम लिख लेते हैं, dw can be written as f dot dr, right? अब यहाँ पे we can see in vector form we can write this, क्योंकि हमें सारी चीज़ें वेक्टर फॉर्म में ही ऑलरेडी गिवन है. अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो वी कैन राइट एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप इंटू डी आर को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, राइट? एंड दिस विल बी डी डब्ल्यू. अब यहाँ पे वी कैन सी, वी कैन राइट देयरफॉर डी डब्ल्यू कैन बी रिटन एज एफ एक्स डी एक्स प्लस ऑफ एफ वाई डी वाई, because we know dot product I dot I is 1 and j dot j is 1, rest of the combination is 0. so ये अब हम integrate कर देंगे इसे on both side. so on integration just we now have to put the values. यहाँ पे हम लिख देंगे total work done will be equals to fx की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम पहले, तो माइनस 2x प्लस 2y dx, इसको द होल इंटीग्रेशन में रखते हैं फिलहाल.
प्लस एफ वाई की वैल्यू अगर हम देखें तो इसको हम लिख देते हैं 2x dy माइनस ऑफ वाई स्क्वायर dy, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से, और इसको भी थोड़ा सा एक्सपांड करके लिख देते हैं हम, -2x dx प्लस 2y dx, राइट। कुछ इस तरीके से ये वैल्यूज मिलेंगी हमें। और यहाँ पे वी कैन सी इंटीग्रेशन, और इसको भी अभी फिलहाल के लिए इंटीग्रेशन में रखते हैं हम। सो ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास, यहाँ से हम देख सकते हैं, वी कैन सी, अब एक एक टर्म को जब हम इंटीग्रेशन देंगे, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो होगा, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा -2x² बाई 2 प्लस, इनको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो इसी को ऐसे ही रखते हैं हम अभी, 2y dx प्लस ऑफ 2x dy, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास y³ बाई 3, इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है, और दिस विल बी नाउ इक्वल्स टू w। सो नाउ फ्रॉम हियर वी कैन से w कैन बी रिटर्न एज, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -x² एंड लिमिट वी कैन पुट फॉर x। अगर हम देखें ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट में x की जो लिमिट वेरी हो रही है वो हो रही है 2 से 1 के लिए, 2 से 1। और सिमिलरली y के लिए भी हम लिख देते हैं पहले ये टर्म, तो y³/3, और इसकी लिमिट वेरी हो रही है 3 से 2 के लिए, प्लस इसको अब हम ध्यान से देखते हैं क्या लिख रहे हैं हम, 2 और इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख रहे हैं x dy प्लस y dx, इस तरीके से लिखा जा सकता है ये। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी ये जो x dy प्लस y dx है ये एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज, माइनस को हम बाहर ले लेंगे तो ये 1 - 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 फर्स्ट 8/3 माइनस ऑफ 27/3, कुछ इस तरीके से, एंड प्लस ऑफ 2 इंटू, इसको हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ d इंटू एक्स वाई। सिंस वी नो, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें एक्स वाई का तो ये क्या मिलता है हमें, पहले हम x को कांस्टेंट मानते हैं dy का इंटीग्रेशन, प्लस y को बाहर रखते हैं dx का इंटीग्रेशन। सो अब यहाँ से देख सकते हैं दिस वी कैन राइट दिस वे। अब इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन विल बी जस्ट द वैल्यू दैट इज एक्स वाई आ जाएगा डायरेक्टली। सो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन वी कैन राइट therefore w will be equals to माइनस ऑफ 3, -1 - 4 will be -3 प्लस 3 हो जाएगा, ये +3 माइनस ऑफ दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 27 19/3, माइनस ऑफ 19/3, तो ये +19/3 हो जाएगा, प्लस ऑफ ये जस्ट एक्स वाई आ जाएगा, एक्स वाई, एंड लिमिट विल बी टोटल, ये जो लिमिट थी हमारी 2 सीरीज है 1, 2 तक, ठीक है। एंड वी नीड टू बी केयरफुल, यहाँ पे अंदर 2 भी है हमारे पास, ठीक है। सो फाइनली वी कैन सी दिस वैल्यू ऑफ वर्क डन कैन बी रिटन एज 928/3 प्लस ऑफ ये हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज एक्स वाई की वैल्यू जब हम डालेंगे 1, 2 तो 4 माइनस ऑफ 6 12, सो ये आएगी हमारे पास वैल्यू 28/3 माइनस ऑफ 8, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 4/3, राइट। 4/3 आ रही है हमारे पास वैल्यू ऑफ वर्क डन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन डायरेक्टली राइट नाउ, फ्रॉम 1 जो हमने लिखा था, वी कैन से डब्ल्यू नेट हमें मिल चुका है 4/3 विल बी इक्वल्स टू हाफ mv² माइनस ऑफ 8/3, सो ये हो जाएगा 12/3 विल बी इक्वल्स टू हाफ m, हमें 2 गिवन है v², सो वी कैन सेट जो v की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर to the question. I hope you understood the solution. All the best.